सारे हैप्पी मदर्स डे। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु का कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि आज हम शुक्रगुजारी करें, और जितनी भी मॉम है यहाँ वो ब्लेस्ड मॉम है। हालेलुया। सो आज सबसे पहले सरमन शुरू करने से पहले मैं उन माँओं को इनवाइट करता हूँ, जो भी आपका मॉम बनने का एक्सपीरियंस है वो आप 2-3 मिनट तक शेयर करें कि आपको परमेश्वर ने मॉम बनाया, आप मॉम बनकर क्या फील कर रही हैं, आप कैसी मॉम हैं और इन फ्यूचर में क्या चाहते हैं। जो आपके दिल में परमेश्वर ने डाला है, जो आप इनकरेजमेंट के लिए बोलना चाहती हैं, आगे आइए और बोलिए, ताकि बाकियों को भी एक एक्सपीरियंस मिले कि हम ये मॉम कैसी है, इसका एक्सपीरियंस कैसा है, मैं भी एक अच्छी मॉम बन के ऐसा एक्सपीरियंस करूंगी। आमीन। आइए, सबसे पहले कौन आना चाहता है? सबसे पहले कौन आना चाहता है? हालेलुया। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हालेलुया। भैन जी पलविंदर ਲਈ जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। हैप्पी मदर्स डे। ऊपर कर लो, माइक ऊपर करके। प्रभु ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਬੇਟੀ ਆ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ 13, 12 ਐਂਡ 9 ਇਅਰਸ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਅਪਸ ਡਾਊਨ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਸਸ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀਸਸ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੇਰੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈਲ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ। ਲਾਈਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲॉर्ड। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ 9 ਈਅਰ 올ਡ ਬੇਟਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਦਰ ਆ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਲੈਸਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਰੂਟਫੁਲ ਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, H&RTC ਟਰੱਕਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਆਇਆ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੇ ਗਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਵੀਨਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ
ਡਨ ਕਰ ਦਈਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਡਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀਸਸ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਵੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਭਾਜੀ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ 3-4 ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀਸਸ। ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਸੋ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਸਡ ਮੌਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਗॉड ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵ ਆ। वो कैसे प्रभु को प्रेम करते हैं, कैसे परमेश्वर के साथ वॉक करते हैं। जब हम ऐसा सोच लेंगे कि मैंने परमेश्वर के साथ वॉक करना है, वफादारी के साथ चलना है, तो बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन का हिस्सा होगी। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोरदार क्लैपिंग। और कौन सी बहन आना चाहती है आगे? भैन जी बलबीर भी कुछ कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार क्लैपिंग, हालेलुया। हलो भैन जी माइक, तुसी अपना एक्सपीरियंस दसो कि तुहाडा एक्सपीरियंस की आ मॉम बन के, ते की तुसी प्राउड फील करदे हो। हालेलुया। हाँ जी, हैप्पी मदर डे सारे ਨੂੰ। ऊपर कर लो माइक। हाँ जी, हालेलुया। हाँ जी, मेरे 4 बेटियां, 1 बेटा है। आमीन। प्रभु ने बड़ा, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਮੀਨ। ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ 12 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, 2012 ਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਮਲ। ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੋ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਹੀ ਆ, ਆਮੀਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਕੱਲ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਟਰੱਕ ਮਲੇ। ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ, ਟਰੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ। ਆਮੀਨ। ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਟ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸੁਖੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਮ ਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੌਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। I had three girls, and one was a miscarriage, which was a boy in the beginning actually. So that was in England. ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ 1 ਬੇਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. Sonia was my eldest, Sonia Daliwal, and she was with God
ਜਿਹੜੀ ਸੀ 20 ਸੋਨੀਆ years. ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ कि मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि बहन को समझ आएगी। वो ये चाहते थे कि ये सोनिया क्यों चली गई है क्रिश्चियनिटी में, क्यों ये क्रिश्चियन बन गई है, इसको वापस लाना है। लेकिन वो कहती पास्टर जी मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरी मॉम और मेरी सिस्टर जब तक बैप्टिज्म नहीं होगी मैं यीशु के पास नहीं जाऊंगी। हालेलुया। और फाइनली इनका बैप्टिज्म हो गया यीशु मसीह नासरी के नाम से। और उस दिन इतना रोई, इतना ब्लेसिंग से भर गई, कहती आज मैं जीत गई हूं। जब ये लोग मुझे वापस खींचना चाहते थे लेकिन मैंने इन्हें खींच लिया यीशु के नाम से। और एवरी संडे बहन जी चर्च में आते हैं। हालेलुया, Praise the Lord. Praise हालेलुया, Yeah, Sonia was a wonderful, wonderful, beautiful girl. आमीन। And till the kidney failed and illness took over. She was so lovable, so beautiful. And when she joined into Christianity, my husband kicked her out of the house. ਜਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। That was very struggle time. Yes. And then my husband took on to drinking because of her being out on her own. But she joined into Christianity and God blessed her all these 20 years. And then she got to know Pastor G for good 10 years, I believe. Sonia is the one that bring me into Christianity. My two daughters, Sonia brought in Rina, and my little one Priya, she's still kind of confused. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। I bless all the mothers. ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। And all the good health to my daughters. Amen. wherever Hallelujah. they are. And God bless you all. एक बारी सारे बहन भाइयों को जय मसीह की, सबको जय मसीह की, हैप्पी मदर्स डे। सो आज का मदर किस टॉपिक पर है? क्या टॉपिक है आज का? हालेलुया। बहन जी कहते मदर्स डे पे है। हालेलुया। सो आज का टॉपिक है, मेरे साथ एक वचन पढ़िए, 2 तिमोथियस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। क्या लिखा है वहां? 2 तिमोथियस चैप्टर नंबर 2 तिमोथियस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। क्या वचन कह रहा है? ये पवित्र शास्त्र जो पवित्र आत्मा के वसीले से रचा गया है, लिखा गया है। होली स्पिरिट ने, जैसे सिस्टर बता रही थी कि होली स्पिरिट ने बोला यहां क्लिक कर दे, इन्होंने आंखें बंद करके क्लिक कर दिया, पास हो गया। सो इसी तरह ये पवित्र शास्त्र है, होली स्पिरिट के द्वारा लिखा गया है। ये किसी इंसान की समझ से नहीं लिखा गया, ये लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है, जीवित वचन है। और जो कुछ ये यहाँ पर लिखा गया है वो सच्चा है और होता है। हालेलुया। सो आज का वचन जो है बड़े ध्यान से सुनना है, स्पेशली मॉम के लिए है और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनके लिए भी है। हर एक के लिए आज का वचन जो है वो बहुत कीमती है। हालेलुया। क्योंकि आज का वचन कहाँ से आया है? किसकी ओर से आया है? होली स्पिरिट की ओर से है। ये मेरी ओर से नहीं है, आपकी ओर से नहीं है, ये वचन परमेश्वर की ओर से आया है ताकि आप मॉम, ब्लेस्ड मॉम बन जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जब मदर एक मॉम बनती है, बेबी को जन्म देती है, तब वो मॉम बनती है। अगर बेबी नहीं आया तो वो उसको मॉम कौन करेगा? कोई कहेगा मॉम? जब उसके पेट में से एक बेटा बाहर आएगा, एक बेटी बाहर आएगी, वो प्रेग्नेंट होगी, तो फिर क्या बनेगी? मदर बनेगी। हालेलुया। और फिर उसको कहते हैं ये ब्लेस्ड मॉम है। हालेलुया। हम सब ब्लेस्ड हैं। क्यों? कि हमारे सब के, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 6, पिछले ज़माने में तो बहुत बच्चे होते थे। तो खुदा का शुक्र है कि परमेश्वर ने हमें ब्लेस्ड मॉम बना के रखा है। हालेलुया। जब जन्म हो जाता है, जब बेबी का जन्म हो जाता है, फिर क्या मॉम बन जाती है? फाउंडर। फिर क्या बनती हैं? बोलो फाउंडर।
हालेलुया। बच्चे के कैरियर की फाउंडर कौन है? मॉम। ध्यान से बात को सुनो, जब आपका बच्चा पैदा हो गया तो अब आप फाउंडर बन गई हैं कि अब उसके कैरियर की जिम्मेवारी मुझ पर है। हालेलुया। फिर उसकी आप हेल्थ की फाउंडर बन जाती हैं। अब आप पर डिपेंड है कि आपने बच्चा हेल्दी रखना है कि आपने बच्चा वीक रखना है। ये आप फाउंडर हैं, मॉम जो हैं। अगर मॉम फाउंडर नहीं बनी तो बच्चा जीरो। अगर वो अच्छी फाउंडर बन गई तो उसका ख्याल करेगी, बेटा क्या खाया, बेटा क्या पिया, पीछे पीछे लेके जाएगी, पीछे पीछे उसको खाना खिलाएगी। उसको कहते हैं असली मॉम। तो जिसको पता ही कुछ नहीं, वो असली मॉम नहीं है। उसने जन्म तो दे दिया लेकिन फाउंडर नहीं बन पाई। हालेलुया। फिर वो क्या चीज की फाउंडर बनती है? बच्चे की एजुकेशन की फाउंडर बनती है। छोटे से बच्चे को ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट सिखाना शुरू कर देती है, कलर सिखाना शुरू कर देती है। वो अभी स्कूल नहीं गया, अभी वो किंडरगार्टन नहीं गया, तो क्या करती है? उसको सिखाना शुरू कर देती है। हालेलुया। ये क्यों करती है? क्यों करती है? क्योंकि वो फाउंडर है। उसकी एजुकेशन की फाउंडर कौन है? मॉम। ध्यान से बात को सुनो। अब कई बच्चों की नॉलेज बहुत होती है। वो क्यों? कई बच्चों की नॉलेज, छोटे से बच्चों की नॉलेज बहुत ज्यादा है। इसका मतलब उसकी मॉम उसकी एजुकेशन की फाउंडर है, उसकी नॉलेज की फाउंडर है। नॉलेज जितनी मॉम को नॉलेज होगी उसकी नॉलेज उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। मॉम पहले से सिखा देगी। जहां कनाडा भी है एक, चाहे वो इंडिया में रहता हो, अफ्रीका में रहता हो, उसको पता होगा कनाडा भी एक कंट्री है। नहीं तो बहुत से बूढ़े हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कनाडा कंट्री भी कोई है, क्योंकि उसकी नॉलेज जो है वो उसकी फाउंडर मॉम है, इसलिए उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। हालेलुया। फिर वो बच्चे की क्या बनती है? स्पिरिचुअल एंड फिजिकल फाउंडर बनती है। हालेलुया। फिर कैसे बन जाती है? अब उसकी सेहत भी उसने अच्छी की, अब उसको स्पिरिट में भी अच्छा कर रही है। हालेलुया। उसको सिखा रही है, बहुत सी बातें सिखा रही है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मॉम उसके बहुत करीब होती है। आपको पता है सबसे ज्यादा करीब कौन है? मॉम है बेबी के। हर टाइम मॉम 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 कि पापा को कहता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा भैन जी हुणे क्या गए हैं, भैन जी कह रहे हैं सब बच्चे मेरी बहुत केयर करते हैं, क्योंकि बच्चे इनके बहुत करीब हैं। हालेलुया। क्योंकि ये एक अच्छी मॉम है। हालेलुया। जैसा मॉम चाहे बच्चे को बना सकती है, जैसा मॉम चाहे, चाहे वो अच्छा बना दे चाहे वो बुरा बना दे। ये मैसेज परमेश्वर की ओर से है, सबके लिए है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ताकि हम क्या बने? अच्छे बने। वचन सुधारने के लिए, धर्म की बातें सिखाने के लिए गुणकार है, ताकि हम अच्छी मॉम बने, अच्छे फादर बने। हालेलुया। सब चीजें मॉम की, बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारी आदत मॉम की बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। पता है आपको? हालेलुया। कई लोग ये कहते हैं, यार ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये बच्चा ना किसी अच्छी मॉम का बच्चा है। ऐसा कहते हैं कि नहीं? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहते हैं, यार इस बच्चे का IQ बहुत ज्यादा तेज है, ये बच्चा किसी अच्छे खानदान का है। क्यों? क्योंकि वो मॉम ने उसको अच्छी नॉलेज दी है, अच्छी मेहनत की है, अच्छा उसको सिखाया है, अच्छा उसको पढ़ाया है, उसको एटीट्यूड दिया है। इसीलिए वो लोग कह रहे हैं ये बच्चा तो बहुत अच्छा बच्चा है, क्योंकि एक अच्छी मॉम का बच्चा है, ये अच्छे खानदान का बच्चा है। हालेलुया। वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। हाँ, एक स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है कि एक मॉम थी, तो वो क्या करती है, हर रोज सोफे पे बैठ के पहन के थे गया बैठ जाती सोफे थे, इधर बच्चे खेल रहे हैं, वो हर रोज ऐसा करती है। बच्चों को पता क्या कहती? बेटा मेरी बात सुनो, सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, स्मोकिंग जो है बहुत डेंजरस बात है, स्मोकिंग नहीं करना आपने। बेटा कहता यार ये चंगी बात है। बेटा ना एक दिन जाके वॉशरूम में स्मोक करने लगा, मॉम ने देख लिया। मॉम कहती तू को क्या कर रहा था?
वो कहता कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं, मैंने नहीं कुछ किया। वो कहती तू तो स्मोक कर रहा था। उसने बोला हाँ, अगर तूने देख ही लिया है तो फिर मैं क्या बोलूं, मैं कर रहा था। वो कहती मैंने तुझे बोला था ना स्मोकिंग बहुत डेंजरस है आपकी सेहत के लिए। वो कहता मेरी सेहत के लिए डेंजरस, तेरी सेहत के लिए बेनिफिट है, तू तो रोज करती है मेरे सामने। बहुत बुरा हाल हुआ उसका, रोने लगी। कहती बेटा इधर आ, यहां बैठ मेरे पास, आज हम एक बात करेंगे, आज एक कॉन्वेंट बांधेंगे, एक वादा करेंगे, आज के बाद तू सिगरेट नहीं पीना, तो आज के बाद मैं भी सिगरेट नहीं पीऊंगी। वो कहता डन, अगर तू ऐसा करेगी कि आज के बाद तू सिगरेट नहीं पिएगी तो आज के बाद मैं भी सिगरेट नहीं पीऊंगा, मेरा तेरा वादा हो गया। उन्होंने एक कॉन्वेंट बांधा तो उन्होंने दोनों ने सिगरेट छोड़ दी। हालेलुया। जब मॉम बच्चों को दिखाती है, बच्चों के सामने ऐसी हरकतें करती है, बच्चे क्या नहीं करेंगे? हम बच्चों को तो बहुत डांटते हैं, तू ये नहीं करना, तू गाली नहीं निकालना, खुद तो बहुत गालियां निकालते हैं, फिर वो बच्चे क्या करेंगे? हमें अच्छी मॉम बन के दिखाना है। हालेलुया। जब तक आप अच्छी मॉम नहीं बनेगी, बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे। बोलो हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के सामने कॉन्वेंट नहीं बांधेंगे, बच्चों के सामने कॉन्वेंट नहीं बांधेंगे, तब तक आपके बच्चे भी वही काम करेंगे। हालेलुया। अब मॉम बैठ के बच्चों के सामने बॉयफ्रेंड को फोन लगा रही है, हेलो जी मैं टिम हार्टन पे मिलूंगी, वहां टाउन सेंटर में मिलेंगे। बच्चों के सामने बातें हो रही हैं। अब बच्चे क्या करेंगे? हस्बैंड भी है, मैरिड भी है, फिर भी गलत काम हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब पता क्या है? बच्चों को हम नाश कर रहे हैं। बच्चे भी ऐसा ही करेंगे, जो कुछ माँ बाप करेगा, जो मॉम करेंगी, बच्चे भी वो ही करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बच्चे के हाथ में, माँ के हाथ में बच्चे का कैरियर है, सब कुछ मॉम के हाथ में है। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है? अगर छोटे बच्चे को, अगर हम चाहते हैं कि हम छोटे बच्चे को अच्छा बच्चा बना दें, तो आज हमें एक कॉन्वेंट बांधना है कि उसे चर्च में लेके आना है। अगर अभी बच्चे खराब हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, वो एडिक्शन में जा चुके हैं, वो अडल्ट्री में जा चुके हैं, वो गुनाह में जा चुके हैं, तो आपको रात दिन प्रेयर करनी है। अगर मॉम प्रेयर वाली होगी, बच्चों देखेंगे मेरी मॉम सुबह भी प्रेयर में, शाम को भी प्रेयर में, वो असर होगा उन पर, वो प्रेयर वाले बनते चले जाएंगे। मॉम फास्टिंग करेंगी, बेटा मैं आपको खाना बना दूं, मॉम आपने खाया? नहीं आज मेरी फास्टिंग है। तो क्या होगा? बच्चों पर असर होगा। वो कहेंगे अच्छा मॉम आज मैं भी फ्री हूं, ऑफ है मेरा, मैंने स्कूल या वर्क पे नहीं जाना, आज मैं भी फास्टिंग करूंगा। मेरी मॉम फास्टिंग करती है, मैं भी फास्टिंग करूंगा। क्या होगा? उस घर में स्पिरिचुअलिटी आएगी, उस घर में होली स्पिरिट आएगा, उस घर में प्रभु यीशु का नाम आएगा। हालेलुया। बच्चे क्यों नहीं अच्छे बनेंगे? अगर बच्चे बिगड़ चुके हैं, वो हमने बिगाड़े हैं, उनका नाश का कारण हम हैं। बोलो हालेलुया। क्योंकि हम उन्हें चर्च में लेके नहीं आए, हमने उन्हें वचन नहीं सिखाया, हमने उन्हें बर्बाद किया है। अच्छा दूसरी बात एक और सुन लो, अगर मैं अपने बेटे को अभी से नहीं बचाया, तो इसका मतलब है जो उसके बच्चे होंगे वो भी नाश हो गए, और जो उसके बच्चे होंगे यानी मेरे पोते परोतड़े, वो भी नाश हो जाएंगे। कारण मैंने नहीं कुछ किया, मैंने मॉम में अपने बच्चों को नहीं संभाला, मैंने अपने बच्चों को परवरिश नहीं दी, मैंने अपने बच्चों को स्पिरिचुअल लाइफ नहीं दी, मैंने उनको गंदगी में डाल दिया है। वो गंदगी का जीवन जिए, वो पाप का जीवन जिए, वो एडिक्शन में चले जाएं, वो पाप में चले जाएं, वो गुनाह में चले जाएं। ये हमने किया है, गुनहगार हम हैं। हालेलुया। फिर पता क्या कहते हैं? ओ कनाडा का तो कल्चर ही ऐसा है जी। देखो क्या कहते हैं, कनाडा का कल्चर ही ऐसा है। हालेलुया। कल्चर ऐसा नहीं है, आपने खराब किया है कल्चर। परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर रखा है, बच्चे ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं। और आपको यह पता है कि कितने परसेंट लोग बच रहे हैं? कितने परसेंट लोग यहां पर बच रहे हैं, बिलीवर परमेश्वर को जीवन दे रहे हैं? सिर्फ 2% है। 98% बच्चे नाश हो रहे हैं, अडल्ट्री में, एडिक्शन में, होमलेस चले गए हैं, कोई एजुकेशन नहीं, गे मैरिज कर रहे हैं, पाप में चले गए हैं, गुनाह में चले गए हैं, लाइफ बर्बाद कर दी, पूरी बॉडी टैटू से भर दी है, और जहां नकली डाल दी, जहां डाल दिया, यहां डाल दिया, बेड़ा गर्क कर दिया है। और दोषी कौन है?
दोषी कौन है? हैं? पेरेंट्स। मॉम, मॉम दोषी हैं। अगर मॉम उसे बचाना चाहती, मॉम चर्च आती तो उसे लेके आती ना। कभी मॉम तो चर्च आई नहीं। मॉम कहती मैंने नहीं चर्च जाना, वो तो धर्म बदल देंगे, जाओ बच्चों का नाश करवा लो। अगर चर्च में आएंगे तो होली स्पिरिट कार्य करेगा। जब होली स्पिरिट काम करेगा तो आपके बच्चे ब्लेस होंगे। छोटे बच्चों को चर्च में लेके आना है। छोटे बच्चों को आदत, मेरे बच्चे जी छोटे हैं वो चर्च नहीं आते। भाई छोटे को लाओ चर्च में, तभी तो बड़े होके आएंगे। मैं कुछ फैमिलीज को जानता हूं जो क्रिसमस पर भी कभी चर्च नहीं आए, वो कभी ईस्टर पर चर्च नहीं आए, वैसे वो क्रिश्चियन है। किसकी गलती है? मॉम की। मॉम की ये गलती है। हालेलुया। क्योंकि मॉम ने उन्हें ये रस नहीं दिखाया। मॉम खुद कभी प्रेयर में नहीं बैठी, मॉम खुद कभी फास्टिंग में नहीं बैठी, मॉम खुद कभी चर्च नहीं गई। हालेलुया। और हम क्या कहते हैं? चलो जी कल्चर ही ऐसा है, यहां का तो कल्चर ही ऐसा है, कोई बात नहीं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्पिरिचुअल बने, आपके बच्चे जीवन पाएं, तो पहले आपको जीवन प्रभु को देना पड़ेगा। आप अपना जीवन बदलो, बच्चों का जीवन ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, क्योंकि वो रोज आपसे बात करते हैं। जब आपके मुंह से एक ब्लेसिंग निकलेगी, जैसे सिस्टर कह रही है बच्चों को शराब मत दो, तो क्या होगा? उन पर ब्लेसिंग आएगी। जब मॉम के अंदर ही गंदगी है तो वो बच्चों को क्या ब्लेस करेगी? नो, वो शराब ही देगी। लेकिन अगर आपके अंदर ब्लेसिंग है, आपके अंदर जीवन है, आपके अंदर वर्ड ऑफ गॉड है, आप बच्चों को जाने के टाइम क्या करेंगे? बेटा आई ब्लेस यू। हालेलुया। वो कहेगा अच्छा, उसको ब्लेस यू करके तोड़ना है, उसके लिए प्रेयर करनी है। हालेलुया। देखो जीवन बदलते हैं कि नहीं? हालेलुया। छोटे बच्चों को प्रेयर करना सिखाना है। छोटे बच्चों को हीलिंग के बारे में बताना है। बच्चों को पता ही नहीं हीलिंग होती है। अच्छा, हीलिंग भी होती है? बच्चों को कहां से पता चलेगा अगर आपने बताया ही नहीं? अगर आप ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज में लोगों को बता रहे हैं भाई यीशु के पास आया करो, देखो, क्योंकि माँ बाप उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि वो चर्च में आते हैं, वो चर्च में सुनते हैं, हीलिंग होती है। कैंसर चला गया, लोगों का ये हील हो गया, लोगों का ये हील हो गया। अगर हमें पता होगा तभी तो बताएंगे ना। जब हम चर्च ही नहीं कभी गए, हमें तो चर्च का डोर का नहीं पता, तो फिर हम कैसे बताएंगे अपने बच्चों को? हालेलुया। सो क्या करना है? अपने बच्चों को चर्च में लेके आना है। चाहे वो नहीं आ रहे, उनको लेके आना है। हर रोज उनके लिए प्रेयर करनी है, हर रोज उनके से बात करनी है। बेटा चलो चर्च चलें, बेटा आज तुझे मैं चर्च लेके जाना है। क्यों मैं ये बातें बता रहा हूं? क्योंकि आप उनको नाश कर रहे हैं। अगर वो चर्च नहीं आए तो उनके जीवन नाश हो गया, फिर उनके बच्चों का जीवन भी नाश हो गया, फिर उनके बच्चों का भी जीवन नाश आपने किया है। बोलो हालेलुया। आप गुनहगार हैं। खुदा ने आपको मॉम बनाया था, खुदा ने आपको ब्लेस। मैंने आपको बताया ना, मेरी मॉम सुबह उठती ही ये गीत गाया करती थी। हालेलुया। मेरे मन विच आ बस तू ओ कंडियां दे ताजवा, और बहुत प्रेयर वाली थी। अगर आज मैं ऑल्टर पर खड़ा हूं तो बिकॉज ऑफ माई मॉम। मेरी मॉम ने मुझे प्रेयर कर करके यहां तक खड़ा किया होगा। अब तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेयर बहुत थी, बहुत। मैं जब होली स्पिरिट से भरा, मेरे को अभी भी वो याद है दिन, ये तब मैं 10 साल का था। तो दिल्ली से, इंडिया में रहते थे, दिल्ली से एक पास्टर आए थे, वो केरला के थे। तो जब उन्होंने वहां एक मीटिंग की तो मैं होली स्पिरिट से भर गया। मैं उस टाइम होली स्पिरिट से भरा, और देखो कितनी देर की बात है, 10 साल का तो कहां 58। हालेलुया। तब से परमेश्वर ने मुझे चुना। और फिर मेरी बात सुनो, मेरे बच्चों दोनों को, गुड़िया को और मोंटी को, ये स्पेन में थे। मोंटी मेरे ख्याल 7-8 साल का था, गुड़िया 10 साल की थी। होली स्पिरिट से भर गए। बोलो हालेलुया। और दूसरी बात आपको बताऊं, मेरे पास वीडियो है, कुछ लोगों ने, सिस्टर डोरी ने शायद सुनी होगी। वो मेरा ग्रैंडसन छोटा सा है, टंग्स में प्रेयर कर रहा है अपनी नन्नी मम्मा के लिए। टंग्स में कितना सा है, 2 साल का, टंग्स में प्रेयर कर रहा है अपनी नन्ना मामा के लिए। कहता मैं आपके नीस के लिए प्रेयर करूंगा। देखो ये क्या असर है? मॉम की प्रेयर का असर है, मॉम का एटीट्यूड का असर है, मॉम की फास्टिंग का असर है बच्चों पर।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आप खानदान नाश कर देंगी। हालेलुया। लेकिन आज आपने ये करके दिखाना है, नहीं मैंने ये कुछ करके करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कैसी मॉम बनना है आज? कैसी मॉम बनना है? असली मॉम बनना है, ड्रामे वाली मॉम नहीं बनना। कितने % लोग बच्चे बच रहे हैं? 2%। जो बच्चे नाश हो रहे हैं वो सिर्फ इसकी वजह से कि उनकी मॉम ने केयर नहीं की। वो कहां जा रहे हैं? डिस्को में। चर्च नहीं कभी गए, लेकिन डिस्को में एवरी रोज ही जाते हैं, मेरे को पता नहीं है रोज खड़े जाते हैं, कब कब जाते हैं। वो वहां पैसे खर्च के जाके डिस्को करते हैं। हालेलुया। नाश अपने आप को करते हैं, वहां खूब स्मोकिंग करते हैं, वहां खूब नशा करते हैं। हालेलुया। लेकिन जो बच्चे, बेटा आप गए कभी? आप डिस्को गए हो कभी? पता है आपको? हालेलुया। इनको पता ही नहीं डिस्को कहाँ होती है, मुझे भी नहीं पता डिस्को कहाँ होती है। बोलो हालेलुया। पता कैसे चलेगा? इनको चर्च का पता है, क्योंकि मॉम लेके आती है, चलो चर्च में जाना है। बोलो हालेलुया। ये मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को चर्च में लाना। बेटा चल, तेरा जीवन बच जाएगा। हालेलुया। और अगर हमने अपने बच्चे नहीं बचाए तो खुदा हमें बचाएगा? खुदा उनको बच्चों को प्यार करता है। हमने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। हालेलुया। बल्कि उल्टा गालियां दी, शराब दिए, घर से निकाल दिए। कितनी बुरी बात है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। खुद मॉम कहती है अब तो तू जवान हो गई है, जवान हो गया, जा बॉयफ्रेंड ले ले, कर लो बात। क्या कहते हैं? अब तो तू 16-18 का हो गया है, तेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। देखो। और मोंटी को जानते हैं आप? 30 साल का हो गया, कोई पता ही नहीं गर्लफ्रेंड का कहां होती है। बोलो हालेलुया। अब उसकी गर्लफ्रेंड कौन सी है? पिंकी। बोलो हालेलुया। वो बच्चों के तरह बस उसके साथ खेलते हैं, जाते हैं, आते हैं। खुदा ने ब्लेस कर रखा है। बोलो हालेलुया। किसकी वजह से? प्रेयर की वजह से, मॉम की प्रेयर की वजह से। हालेलुया। ये सब बातें तब हैं जब एक मॉम अच्छी मॉम होगी। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या करना है? बच्चों के सामने कोई बुरी बात नहीं करनी। क्या नहीं करनी? गर्लफ्रेंड को फोन करना है, बॉयफ्रेंड को फोन करना है, गाली निकालनी है, स्मोक करना है, ड्रिंक करना है? नहीं करना। आज से अच्छी मॉम बनना है। हालेलुया। ताकि आने वाली जनरेशन ही बच जाए, पूरी जनरेशन। हालेलुया। पूरी जनरेशन ही बच जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। और बड़ी बात क्या करनी है? एवरी संडे चर्च में आना है। एवरी संडे आपने चर्च आना है। जब आप यहां आते हो, आप बड़ी ब्लेसिंग लेके आप घर में एंटर करते हो, तो आपकी ब्लेसिंग फैलती है। जब आपने चर्च ही नहीं आना, घर में ब्लेसिंग कैसी फैलेगी? बताओ जी। चर्च तो आए ही नहीं कभी, ब्लेसिंग कौन सी घर में फैलेगी? आपके अंदर से जो अभी खुशबू भर रही है, अभी चर्च आए हो, प्रभु का वचन सुन रहे हो, होली कम्युनियन ले रहे हो, फेलोशिप कर रहे हो, वर्शिप सुन रहे हो, तो किस चीज से भर रहे हो? खुशबू से। ये खुशबू लेके आप जाओगे घर पे, तो फिर क्या होगा? वो खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। हस्बैंड पर वो खुशबू आएगी, एक दिन वो भी कहेगा मैं भी चर्च में जाना हूं, मैंने, बच्चे कहेंगे हमने भी चर्च में आना है। हालेलुया। लेकिन आपको स्टेप लेना है। ये वचन को इधर से नहीं निकाल देना, कहना नहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपने बच्चों की, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने कुछ करना है। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम। एवरी संडे आना है कि साल में एक बार आना है? आप भैन जी एवरी संडे, तू ही भैन जी दसो। एवरी संडे। बोलो हालेलुया। एवरी संडे चर्च में आना है, तो एवरी संडे खुशबू को घर पे लेके जाके फैला देना है। हालेलुया, हालेलुया। अब समय आ गया है कि हम क्या करें? बचाएं। एस्टर नाम की एक लेडी थी। क्या नाम का? एस्टर। उसने क्या किया? वो बहुत प्रेयर वाली लेडी थी और उसने कहा मैंने कौम को बचाना है। किसको बचाना है? कौम को, जूइश लोगों को उसने बोला मैंने बचाना है। वो रानी थी राजा की, और क्या करती है?
कहती है मुझे राजा के पास भेजो, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, 3 दिन फास्टिंग की। आप भी की, अपनी सहेलियों को भी बोला फास्टिंग करो, अगर राजा ने मुझे मार दिया तो मार दिया, मैं जाऊंगी राजा के पास। क्योंकि राजा के पास जाने के लिए हर एक रानी का डे होता था कि इस दिन इसने आना है, इस दिन इसने आना है। तो राजा जो मर्जी डिसीजन दे सकता था। अभी उसका नंबर नहीं था, लेकिन वो लॉ जो तोड़कर राजा के पास पहुंच गई। बहुत सुंदर एस्टर थी, उसका नाम बाइबल में है। राजा के पास जाकर कहती है, राजा मैंने तुझसे बात करनी है, तू खाने पे आ। ओके मैं आऊंगा। चलो जी, उसने खाना बनाया। कहता बता क्या बात है। वो कहती है कि ये आदमी हमारी सारी नेशन को मारना चाहता है। वो गलत आदमी है राजा, और तूने गलत फैसला ले लिया है। इस फैसले पर विचार कर। ये कौम गलत नहीं है, यूश लोग गलत नहीं हैं। वो कहता अच्छा, बात तो असली ये है। उसने अपना फैसला बदल दिया। बोलो हालेलुया। उसने उस आदमी को रास्ते में क्रूसीफाई कर दिया और सारी कौम को माफ कर दिया। बोलो हालेलुया। किसने बचाया? एक औरत ने। हालेलुया। आज आप अपने बच्चों को नहीं बचा सकती? कैसी मौम है आप? एक बच्चे, अपने पेट का फल बच्चे, हम उसको कहते हैं जा नरक में। कोई चीज हमें खुदा के साथ जोड़ नहीं सकती जब तक मॉम ना ट्राई करे। हालेलुया। जब आप ट्राई करेंगी, आप उनको लेके आएंगी, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगी, वो खुदा के साथ जुड़ गए और जीवन मिल गया। क्योंकि दुनिया की सब चीजें नाश होने वाली हैं, सिर्फ और सिर्फ जीसस में जीवन है, एवरलास्टिंग लाइफ है। हालेलुया। तो अब क्या करना है? हमें परमेश्वर के पास आना है अपने बच्चों को लेकर। मेरे साथ बुक निकालिए, प्रोवर्ब्स पढ़िए। एक मॉम कैसी है। हालेलुया। प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 31। बाइबल साथ में लेके आया करो। हालेलुया। यहां पर 10 से पढ़ेंगे 31 तक। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगे से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। किसकी बात चल रही है? मॉम की। एक कहता है भली पत्नी किसको मिलती है? उसको जो खुद भी प्रेयर वाला हो। अगर हस्बैंड ने कभी प्रेयर नहीं की, हस्बैंड कभी चर्च में नहीं आया, हस्बैंड को वचन का पता ही नहीं है, जीसस के बारे में पता नहीं है, उसको अच्छी वाइफ नहीं मिलेगी। अच्छी वाइफ किसको मिलेगी? बिलीवर औरत किसको मिलेगी? जो खुदा को प्रेम करता होगा। हालेलुया। हस्बैंड की भी बहुत ज्यादा ड्यूटी है कि वो प्रेयर वाला हो, वो प्रेयर करने वाला हो। हालेलुया। फिर उसको क्या मिलेगा? एक अच्छी औरत, आदर्श पत्नी मिलेगी, प्रेम करने वाली पत्नी मिलेगी। और उसका मूल्य क्या होगा? मूंगे से भी बेहतर होगा, डायमंड से भी बेहतर होगा, हीरे मोती जवाहरातों से भी बेहतर होगा। हालेलुया। और लोग कहेंगे कि ये फैमिली बड़ी ब्लेस्ड है। जब हस्बैंड और वाइफ ब्लेस है तो फिर बच्चे कैसे होंगे? कैसे बच्चे होंगे? हालेलुया। फिर बच्चे भी फ्रूटफुल होंगे। हालेलुया। जब हस्बैंड टेढ़ा तो वाइफ मेढ़ी, उन्होंने कहते टेढ़ी ते मेढ़ी, दोनों टेढ़े मेढ़े आ, तो फिर बच्चे भी टेढ़े मेढ़े ही होंगे। बोलो हालेलुया। किसी का मुंह ऐ तो किसी ब्यूटीफुल नहीं होंगे। ब्लेस्ड बच्चे वो होंगे जिसके बच्चे में पेरेंट्स प्रेयर वाले होंगे, उनके बच्चे फ्रूटफुल होंगे, उनके बच्चे शाइनिंग वाले होंगे, ग्लोरी वाले होंगे, चर्च में काम करने वाले होंगे, भाग भाग के जीसस के बारे में बताएंगे, लोगों को प्राउड करेंगे हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। हालेलुया। क्योंकि असली मॉम ने उनको जन्म दिया है। हालेलुया। अगली बात, और उसे लाभ की घटी ना होगी। किस चीज की घटी ना होगी? कोई चीज हानि ना पहुंचाएगी उसके, हर जगह उसको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होगी, क्योंकि वो अच्छी पत्नी है, प्रेयर वाली पत्नी है। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी फैमिली शाम को प्रेयर करती है। हालेलुया। आप क्या समझते हैं? प्रेयर करते हैं कोई फायदा ही नहीं है? प्रेयर करने से रिजल्ट आते हैं, प्रेयर करने से गवाहियां बनती हैं। हालेलुया। और क्या है? लाभ की घटी ना होगी। वह अपने सारे जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करता है।
अब आपको पता है कितने % जो हस्बैंड है अपनी वाइफ को बीट करते हैं? बताओ मेरे को नहीं पता, बताइए बताइए, कुछ है आइडिया थोड़ा बहुत? कुछ हस्बैंड अपनी वाइफ को डंडा लेके खूब मारते हैं, है कोई आइडिया? भैन जी किसी ने पता है ना? आ लो जी फड़ दो। भैन जी कहते 90% ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਨਾ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸਲੀ ਵਾਈਫ ਆ। हालेलुया। वे अपने सारे दिनों में उसे बुरा व्यवहार नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? जो चर्च जाने वाला है, जो चर्च जाने वाली है, वो आत्मा से भरे रहेंगे। इधर आ, मैं तेरे लिए प्रेयर करूं, क्योंकि अंदर से प्रेयर बहुत भर गई है। बेटा इधर आ, मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा। बेटी मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा। वाइफ मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा। जिसका अंदर ही खाली है वो तो गालियां ही देगा ना। हालेलुया। वो तो डंडे से ही मारेगा ना। और मैं कहता हूं जर्मन में औरतें भी मारती हैं। बोलो हालेलुया। ऐਵੇਂ ना कही जाइए बंदे ही मार दे, औरतें भी मारती हैं। और क्या करती हैं? आदमी का बैग पैक करके बाहर रख देती हैं। वो काम पे गया, जब काम से वापस आता है तो बैग बाहर पड़ा हुआ है। वो बेल करता है, टिंटे, वो कहती है अब डोर नहीं खुलना, जाओ जहां जाना है, खत्म। ये है वाइफ की ड्यूटी। तो आपको पता है हस्बैंड क्या है? हस्बैंड घर के लिए एक ब्लेसिंग की बात होती है। जब हस्बैंड घर पे आता है खुशबू फैल जाती है। बच्चे कैसे करते हैं? पापा पापा भाग भाग के उनको पकड़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये एक बड़ी ब्लेसिंग की बात होती है। तो उसका बैग बाहर रख दो, बड़ी ब्लेसिंग आएगी? नहीं आएगी। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। अब क्या करती है? अच्छी मॉम ढूंढ ढूंढ कर काम निकालती है। अपने बच्चों के लिए स्वेटर बुनती है, अपने बच्चों के लिए टोपियां बनाती है, अपने बच्चों के लिए सॉक्स बनाती है। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए बैग बनाती है, अपने बच्चों के लिए टेबल शीट्स बनाती है, खुशी आनंद के साथ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। हालेलुया। बेटा इधर आज मैं सेवइयां बनाई हैं। हालेलुया। खुशी से, बेटा राइस पुडिंग मैंने बनाई है, आ खा। उसको चाव है कि मैंने अपने बच्चों को कुछ अच्छा खिलाना है। तो कुछ मॉम क्या करती हैं? मम्मा आज कुछ बनाया है? तो मामा कहती तेरा बेड़ा बैजे बाहर होटल नहीं है गए, वहां जा खा ले। मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया। वो प्यार आएगा? बच्चा खा तो लेगा बाहर से, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे मिल जाएंगे, वो खा लेगा बाहर से, लेकिन इंटरमेसी नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। जो माम के हाथों से खाना बना है उसमें खुशबू आती है। वो कहेगा थैंक यू माम, बहुत स्वादिष्ट खाना है। हस्बैंड भी बैठ के कहेगा थैंक यू हनी, कबनी जो भी कहते हैं, थैंक यू हनी, बहुत अच्छा खाना आपने बनाया है। हालेलुया। ये सब बातें कैसे होगी? काम करने से। वो कहती ढूंढ ढूंढ के काम निकालती है। असली मॉम जो है वह व्यापार के जहाजों पे सामान, अपने भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वो क्या करती है? असली मॉम दूर दूर से क्या मंगवाती है? भोजन वस्तुएं मंगवाती है। और क्यों कहती है मेरा बच्चा ये चीज खाएगा। हालेलुया। मेरा हस्बैंड ये चीज खाएगा, मेरा हस्बैंड ये कपड़ा पहनेगा, मेरे बच्चे ये करेंगे। उसको चाव है। हालेलुया। क्योंकि असली मॉम जो है, हालेलुया, हमें क्या बनना है? असली मॉम बनना है, नकली मॉम नहीं बनना। हालेलुया। वह रात को उठ बैठती है और अपने सारे घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। देखो रात को उठ जाती है, चाव कितना है उसके पास। माम उठो, माम मुझे भूख लगी है, जा चले जा रसोई से लब के खा ला। माम मुझे भूख लगी है, मेरे पास नहीं है टाइम, जा गेट आउट। बोलो हालेलुया। किसी को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हालेलुया। अब वो बच्चे ब्लेस होंगे कि श्रापित होंगे? मेरा बेटा है, जो सब्जी बनाई मैं खानी वो खानी है। जे सब्जी कोई होर किसी घर आई है ना, मम्मी आज सब्जी तेरी बड़ी हुई नहीं, कर लो गल फिर। खानी मेरी सब्जी
आमीन। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस भैन जी ਲਈ जोरदार क्लैपिंग करो। हाँ बोलो हालेलुया। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, इस मोम ने एक किदा कर लिया सारा कुछ। कैसे किया है? क्योंकि ये असली मोम है, ये प्यार करने वाली मोम है, ये चंगी मोम है, ये आदर्श की मोम है। हालेलुया। तो जे अगर ये कहे चल जा मेरे को तो टाइम ही नहीं सी, मेरे पास तो कोई टाइम नहीं सी, मैंने नहीं कुछ बनाया, तो फिर क्या करेगा? चलो मैं रूपी ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, रूपी ਤੁਸੀਂ कुछ बनाया? वो गाड़ियों भी कह देगी मैं नहीं कुछ बनाया, चलो फिर मैं उतों बर्गर ले लांगा। पुछना ही मोम ਨੂੰ, क्योंकि उन्होंने पता कि मोम मैनू की कर दिया, प्यार करती है। हालेलुया। क्योंकि ये आपका प्रेम है कमल के लिए। बोलो हालेलुया। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल के दाग की बारी लगाती है। फिर मोम क्या करती है? बेटा कमल तेनू ट्रक ना लै दिए, की कहती है मोम? हैलो कमल, इदा करिए हूँ ना तेरा लाइसेंस ठीक है, तू अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, तेनू ट्रक लै देने है ना। बचन की कहता? असली मोम ये करेगी। तो नकली मोम पता की करेगी? नकली मोम कहेगी पैसा एक नहीं तेरे लिए है, मेरे को निकल जा जाके जो मर्जी लै, कोई ट्रक ट्रुक तेन मैं लैके नहीं देना। बोलो हालेलुया। क्योंकि मोम को पता क्या है? पैसे यहां रखने की आदत है। असली मोम क्या करती है? पैसे निकालती है। मेरे बच्चों की खुशी हो, मेरा बच्चा अच्छी गाड़ी में जाए, मेरा बच्चा अच्छा खाना खाए, मेरा बच्चा अच्छा कपड़ा पाए, ये उस मोम की प्यार है जो असली मोम है। हालेलुया। नकली मोम नहीं करेगी। नकली मोम कहेगी तेरे पास कुछ है, ठीक हूं, वो भी अंदर आ जाए। हालेलुया। असली मोम ऐसा नहीं कर सकती जो भैन ने करके दिखाया है। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज बोलो हमें सबको असली मोम बनना है। बोलो एक दूसरे को बोलो आपको असली मोम बनना है, नकली मोम नहीं बनना। नकलीपन आज उतार दो यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। वह क्या करती है? सोच विचार करती है, अपने बच्चों को बिजनेस करके देती है, अपने बच्चों को खेत लेके देती है, अपने बच्चों के लिए फलदार मोम बनती है। आगे लिखा वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो क्या करती है? मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूंगी। जो मोम ये नहीं ना सोचती मैंने अपने बच्चों को कुछ देना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, वो फेल है, वो मोम फेल है। वो कभी प्रेम नहीं ले सकती अपने बच्चों का। लेकिन जो मोम ये कहती है बेटा इत्थे आ, मैंने तेरे लिए ये काम किया है, अच्छा मोम थैंक यू सो मच, फिर मोम नू हग करेंगे बच्चे, वो असली मोम बनेगी। बोलो हालेलुया। वह क्या करती है? रात को उसका वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। वो क्या कर, हमारा लाभ तो हमारे बच्चे हैं। हमारा लाभ क्या है? हमारे बच्चे हैं, तो हम बच्चों को तो कुछ देना नहीं चाहते। हालेलुया। लेकिन वचन ये कहता है वह परख लेती है कि ये क्या है? व्यापार लाभदायक है और रात को उसका दिया नहीं बुझता। बोलो हालेलुया। इसका क्या मतलब है? रात को उसका दिया नहीं बुझता, क्या मतलब है इसका? वो रात को भी होली स्पिरिट से बातें करती रहती है। बेटे को ये करके देना है, बेटी को ये करके देना है, बेटे के लिए जमीन लेनी है, बेटे के लिए घर लेना है, बेटे के लिए अच्छी वाइफ लेनी है, अब बच्चे आने वाले हैं, इनका बेडरूम ऐसा होना चाहिए, इनका बेडरूम ऐसा होना चाहिए, ऐसा फर्नीचर होना चाहिए। हालेलुया। ये कौन माम सोचती है? जो रात को भी जागती है। हालेलुया। और कुछ माम को दिन ही कराड़े जाते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं है, ना बच्चे की एजुकेशन का फिक्र, ना बच्चे के कपड़े का फिक्र, ना बच्चे के घर का फिक्र, ना उसकी मैरिज का फिक्र। आपे लाएगा तो आपे छोड़ देगा। कुछ मॉम कहती हैं आपे कर लेगा मैरिज, अब तो जवान है। नहीं, ये मॉम की ड्यूटी है। हालेलुया। ये फादर की ड्यूटी है। हालेलुया। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। कौन सी माम? असली माम क्या करती है? जो बीमार हैं, जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, उनके लिए मुट्ठी खोलती है। असली मॉम की ये है पहचान कि वो क्या करेगी? गरीबों के लिए
खाना देगी। वो करेगी मैंने पैसे डालने हैं, मैंने क्या करना है, काम करना है, मैंने लोगों को खाना देना है, कपड़ा देना है, यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये वचन कहता है कि वो क्या करती है, वो मुट्ठी खोलती है। हालेलुया। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है, जानी कि वो काम करके पैसा लाती है और कहती है आज मैंने $100 वहां देना है, आज मैंने $50 वहां देने हैं, क्योंकि उसके दिल में ये बातें पड़ चुकी है कि देने से क्या देता है, दिया करो तो दिया जाएगा। उसको समझ आ गई है कि अब मैंने दूंगी तो मेरा परमेश्वर भी मुझे देगा। अगर मैं ये कहूं ले लूं ले लूं ले लूं, मिलेगा नहीं। देने से मिलेगा, बोने से काटोगे, बोया ही नहीं तो काटेंगे क्या। हालेलुया। लेकिन ये असली मॉम क्या करती है, अटेरन पर हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो कहती है गरीबों की मदद करनी है, क्योंकि गरीबों की मदद करने का मतलब है परमेश्वर की मदद करना। हालेलुया। वह अपने घराने के लिए हिम्मत से नहीं डरती। वो उनको कोई फिक्र नहीं है कि स्नो पड़ने वाली है, ठंडी आने वाली है, क्योंकि उसने बहुत स्वेटर बना के रखे हैं, बहुत टोपियां बना के रखी है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। बोलो हालेलुया। कितनी अच्छी मॉम है कि उसको आने वाले समय का सब पता है कि अब सर्दी आने वाली है, अब गर्मी आने वाली है, अब मैंने सत्तू घोल के अपने बच्चों को पिलाने हैं। इंडिया में पिलाते हैं ना। हालेलुया। तो वो असली मॉम है, उसको फिक्र है। हालेलुया। वह तकिया बना लेती है और वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। तकिए बना बना कहते, फिर जब बेटा सोता है ना, फिर वो देखने आती है, अच्छा बेटा तकिए पे अच्छा सो रहा है, फिर उस पर एक चद्दर दे देती है, बेटा तेरे को ठंडी तो नहीं लग रही, क्योंकि उसको उसकी टेंशन कहाँ है, बच्चे के भीतर में। तो जो मॉम ड्रिंक करके, स्मोक करके, खूब नशा करके सो गई, उसको क्या पता कि मेरा बच्चा नंगा सो रहा है, मेरा बच्चा कहाँ सो रहा है, उसको तो पता ही कुछ नहीं है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कितनी की समझ आई है? सारी आ गई। बोलो हालेलुया। और क्या कहती है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। यह है असली मॉम की निशानी। जो असली मॉम है, जब उसका हस्बैंड बाहर संगति में, पंचायत में बैठता है ना, तो लोग उसके कहते हैं यू आर ब्लेस्ड, तेरी वाइफ बहुत अच्छी है ना, इसलिए तेरे बच्चे भी अच्छे हैं। तेरा बेटा डीसी लग गया, एएसपी अफसर लग गया, क्या लग गया है, जज लग गया है। वो खुशी से और कहता, हाँ बस मेरे बेटे ने कल ही ज्वाइन किया है, ऑफिसर लग गया है, मेरा बेटा सीएम बन गया है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? मॉम की वजह से। क्योंकि मॉम ने रात दिन उसके लिए टाइम स्पेंड किया है। बोलो हालेलुया। आज आप भी अपने बच्चों के लिए टाइम स्पेंड करो। आज भी आप बच्चों के साथ बैठना शुरू करो, बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, चर्च में लाना शुरू करो, उनके लिए प्रेयर करो, उनके हाथ पकड़ दो, उनको बेटा 2 मिनट बैठ जा, मेरे पास बैठ, उसके हाथ पकड़ के उसके लिए प्रेयर करो। जब आप फास्टिंग करके उसके लिए प्रेयर करेंगी, 110% रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापार का कमर बंद देती है। हालेलुया। वो क्या करती है, जैसे भैन जी कहते हैं बिजनेस शुरू करने लगे हैं, उनकी एडवांस सोच है। कुछ माओ ने क्या किया, पकाया खाया, उनको कोई पता नहीं है बिजनेस करना। भाई तुम भी कुछ कर सकती हो, हस्बैंड के साथ खड़ी हो जाओ, चलो हम भी तेरे साथ हैं। तो कुछ कहने वाली होती है, होना ही नहीं है, छड्डो खड़ा, तुम मत ऐसा काम करो। आमीन। हिम्मत ना, ये किसने दी है? हिम्मत हस्बैंड को हिम्मत दी है। हालेलुया। ये असली मॉम, क्योंकि आप असली मॉम है, आपका ब्लड इसमें चला गया है, आपके जीन्स इसमें चले गए हैं, इसलिए ये क्या, भैन पलविंदर भी असली मॉम बन गई है। बोलो हालेलुया। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। किसका प्रतावा पहने रहती है? बल का और प्रताप का। मैं फेल नहीं होगी। अगर कोई इसे कहता भी है ना, पलविंदर आपका काम नहीं होना, आपको लाइसेंस नहीं मिलना, तो ये कहती है तू देखी 2 लाइसेंस मिलेंगे। हालेलुया। एक नहीं, ये कहती 2 मिलेंगे, चिंता वाली बात नहीं, मैं यस्सु की बेटी हूं, मैं बलबीर की बेटी हूं, देखी है मिल देगी नहीं। बोलो हालेलुया। ये बड़ी बात है।
पॉजिटिव रहना बड़ी बात है। हालेलुया। अपने माइंड को पॉजिटिव रखना, नेगेटिव नहीं रखना। मैं असली इमाम हूं, मैं आपको अपनी मेहनत पर मान है कि मैंने मेहनत की कितनी है। हालेलुया। यीशु पर मान है। अगर आपने नहीं भी मेहनत की फिर भी आपका यीशु आपको साथ देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको फ्री करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपने बल पहन लिया है, यानी होली स्पिरिट को पहना हुआ है, यानी वचन को पहना हुआ है। आपको कोई गिराने वाला नहीं है यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। वचन क्या कहता है? वह बुद्धि की बात बोलती है और वचन कृपा की शिक्षा से अनुसार करती है। वो बुद्धि की बातें बोलेगी, अटपटांग नहीं बोलेगी। कई बीबियां अटपटांगी बोल दिया नहीं, समझ आ रही है? लेकिन वो क्या करेगी? जो चर्च आने वाली है, जो वचन पढ़ने वाली है, जो प्रेयर करने वाली है, जो फास्टिंग करने वाली है, वो ऐसी ऐसी बातें करेगी जैसी बंदे नहीं कर सकते। बोलो हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर होली स्पिरिट बातें कर रहा है। वो सुलझी हुई औरतें हैं, अच्छी औरतें हैं। हालेलुया। वह अपने घराने के चाल चलन पर ध्यान से देखती हैं। क्या करती हैं? अच्छी मॉम अपने बच्चों के चाल चलन पर ध्यान रखती हैं। हालेलुया। दूजी मॉम ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? जाओ जिथे मर्जी जाओ तो आओ, ताड़ी जिम्मेवारी है। हुण मेरा खेल खत्म हो गया, मैंने आपको जन्म दिया, मेरा खेल खत्म है, अब आपकी जिम्मेवारी है, जैसा आपने जीना है जियो, मेरा कोई विच लेन देन नहीं है। बोलो हालेलुया। समझाइए? इसलिए क्या करना है? असली मोम बनना है यीशु मसीह नासरी के नाम से। और क्या लिखा है? और अपनी रोटी बनाकर परिश्रम के बिना नहीं खाती। रोज रोटी पर मेहनत करती है, मेहनत करती है। ऐसे नहीं कि जो मर्जी आया खाओ पियो जो मर्जी करो, नो। मेहनत करनी है, अपने बच्चों पर मेहनत करनी है, हस्बैंड पर मेहनत करनी है, अपने चर्च पर मेहनत करनी है, अपने एरिया पर मेहनत करनी है यीशु मसीह नासरी के नाम से। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसको ऐसी प्रशंसा देता है कि बहुत सी स्त्रियों से अच्छे अच्छे काम तो किए परंतु तुझसा कोई नहीं है। बोलो हालेलुया। उसका हस्बैंड भी ये कहता है तेरे जैसी कोई नहीं है, भाई तू ते धन्य है। उसके बच्चे भी उसको धन्य कहते हैं। हालेलुया। आज हमें ऐसी मॉम बनना है। मदर्स डे का कोई मतलब है? ये हमें रिमाइंड करवाते हैं कि हम अच्छी मॉम है। अगर नहीं है तो आज से हमने अच्छी मॉम बनना है यीशु मसीह नासरी के नाम से। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है वह प्रशंसा की जाएगी। कि एवं झूठा मेकअप, झूठियां गल्लां, ये कह रहा है बेकार है। लेकिन जो यहोवा के भय में चलती है, जो यहोवा की अंडर रहती है, वो ब्लेस्ड होगी। आज हमें ब्लेस्ड बनना है। चर्च आना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। हालेलुया। और आप क्या करेंगे? आप ब्लेस्ड होते और आपको बड़ा इनाम खुदावंद यीशु मसीह से मिलेगा। खुदावंद आपको खुद ब्लेस करेगा, आपको हग करेगा, कहेगा कि तेरी वजह से तेरा खानदान बच गया, तेरी वजह से तेरा हस्बैंड बच गया, तेरी वजह से एरिया ही बच गया। बोलो हालेलुया। आमीन। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गया है। आज से बोलो कि मैं अच्छी मॉम बनूंगी। ऐसे हाथ करके अब बोलो कि मैं बहुत अच्छी मॉम हूं, मैं अच्छी मॉम बन के दिखाऊंगी। आज के बाद मैं अपने घर को बदल दूंगी, आज के बाद मैं अपने बच्चों को बदल दूंगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। खुदावंद आपको बहुत सी आशीष और बरकत दे।